Okay. So what about this question? Submarine So emits similar question. sonar pulse which returns from an underwater cliff in 1.02 seconds if the speed of sound in the salt water is 1531. How far away is it? Same again. D D निकालना है ना. D is equal to VT by 2 है ना. इधर का 2 इधर आ जाएगा. So you can find out. है ना. Or 780.8. कितना आ रहा है? 780.8 आ रहा है. Yes, sir. ओके ठीक है. इसके आंसर्स तो दिए नहीं रहते हैं ना. तो दे आर ऑल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना. Okay, we'll see further. As mentioned earlier, bats search out prey and fly in the dark night by emitting and detecting the reflections of ultrasound, like sonar system. And they are the sonar system, built-in sonar system, Yes, sir. and also Doppler's effect, because they come to know the prey is at what location and moving in which direction. The Yes, sir. जितना fast high आता है उतना frequency pass जितनी object. ओके जितनी नहीं पास से नहीं. हाँ मतलब उनको लोकेशन एग्जैक्ट पता लग जाती है. फ्रीक्वेंसी से पता लग जाता है कौन सी डायरेक्शन में चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से पता लगता है. और ये भी पता लगता है कि अप्रोच हो रहा है कि दूर जा रहा है ना. लोकेशन भी पता लग जाती है. द हाई पिच्ड अल्ट्रासाउंड जो है ऑफ द बैट्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स और प्रे एंड रिटर्न टू द बैट्स ईयर एज शोन इन द following figure. The nature of reflection tells the bat where the obstacle or prey is and what is it like. Porpoises also use ultrasound for navigation. Bat का ये दूसरा नाम है ये. Porpoises means what? Insects. In fact, that actual में ये जो है animal water होता है इसको भी यूज किया word they are used. Also uses ultrasound for navigation and location of the food in the dark. अच्छा पर्पजेस अलग हैं ये. What is this animal you know? Porpoises is what? You know this? They are the water animals like fish. Pointed nose जिनकी होती है. They also use the ultrasound for navigations and location of food in the dark. But ये common name है in fact insects के लिए भी use कर रहे होंगे ये. They are using. Now next one is the structure of human ears. ये थोड़ा सा खुद पढ़ना है. बायो इसकी बायोलॉजी पढ़नी है खुद ही. You can go through this all. Yes, I went through. ये बायो में भी हो सकता हो तुम्हारा. And we are able to, okay. How do we hear? We are able to hear with the help of the extremely sensitive device called ear. It allows us to convert the pressure variations in air. And a sound comes as a pressure variation with audible frequency into the electric signals that travel to the brain via the auditory nerves. The auditory nerve aspect of the human ear is discussed below. ये थोड़ा सा you have to go through this outer ear है ये है ना. ये middle Inner. ear बीच में दिख रहा है ना. And Yes, sir. this is the inner ear है ना. यहाँ से you can go through these all names. ये Okay, yeah. biological part है. इसको just go through and you can just remember that. Okay. तो कुछ questions और करेंगे हम लोग. Then this chapter will be over. We'll revise from first chapter. ना. First chapter से revise शुरू कर दे. Quick revisions can we do? So first some- periodic का revise कर लेंगे.
फर्स्ट पीरियड So कहाँ we से have स्टार्ट हो रहा है, कौन से चैप्टर से? gravitation. सर जो Gravitation. न्यूटन्स थर्ड लॉ और फिर उसके बाद से ग्रेविटेशन. ओके ओके, उसके उसके बाद से ग्रेविटेशन तक, ठीक है चलो। न्यूटन थर्ड सर लॉ हमारी से, नेक्स्ट मंडे को साइंस की पीरियड है। यस सर. अच्छा क्या टॉपिक है? सेम, क्या टॉपिक है साइंस के पीरियड में? सर कंजर्वेशन Physics- ऑफ मोमेंटम physics है में। और ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल, तक. अच्छा हाँ सर उधर तक है। तो मतलब मोशन से लेकर, मोशन वाला टॉपिक में है ना ये सब, है ना? तो देखते हैं वहां से करना है। यस सर, थर्ड लॉ से. यस ठीक सर। है, थर्ड लॉ से। ओके, तो लोग का सेम है, सेम स्कूल है कि डिफरेंट डिफरेंट है? सर सेम है। सेम स्कूल है, बस अच्छा क्लासेस अलग. पहले हम सब एक ही क्लास क्लास है। में. ओके, पेपर तो फिर सेम ही होगा ना? यस सर. तो टेस्ट पेपर रहेंगे सेम ही रहेंगे। क्लास वाइज है कि पूरा सेक्शन वाइज? क्लास वाइज हो गए ना, दे कैन नॉट मेक सो मेनी पेपर्स। ओके ठीक है, यस सर. तो भी ठीक है, वहां से रिवाइज करेंगे। देखो ये बताओ, ये बताओ इसका velocity of sound in air is 332 meter per second. Its velocity in vacuum will be? सर 0। सर जीरो। मीनिंग कौन सा ऑप्शन? मीनिंगलेस। सर मीनिंग डी। ओके, डी ऑप्शन है मीनिंगलेस। ओके, व्हाट अबाउट दिस? Mechanical wave propagates in the medium along the x-axis. The particles of the medium must move on the x-axis. You know coordinate system x, y, z पता है? मैथ्स में यस है सर. कुछ? एक्स एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर ये सर लाइन, एक्स और वाई ये पता है। ओके, एक्स एंड Z वाई पता है, ठीक है। जेड भी बता देता हूँ मैं, ये एक्स वाई है। जैसे ये सपोज रूम है तुम्हारा, या कोई बॉक्स इमेजिन कर लो, है ना? ओके, रूम ले लो अपना। रूम के सामने वाली जो एज है लोअर फ्लोर के साथ तो वर्टिकल वॉल की, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती। लेफ्ट साइड वाली जो एज है ये वाई को, और ये वाली जो तुम्हारी तरफ आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की जो एज है ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करती। ठीक है, क्लियर? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। अगर अगर हमने इसको एक्स लिया तो इसको वाई लेना पड़ता है, इसको जेड लेना पड़ता है। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट, इसको लिया एक्स, इसको वाई लेना पड़ता है, इसको जेड लेना पड़ता है। तो अभी तुम्हारे इसमें एक्स एंड वाई रहेंगी, 11th में तीनों आएंगी। बट आई एम टेलिंग यू इजी टू अंडरस्टैंड, है ना? समझ में आ गया? वाई जेड कौन सी? ये रूम है, यस सर. ये पूरा रूम है, तो उसमें जो सामने वाली एज है ये एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, लेफ्ट वाली वर्टिकल एज जो रूम की है वो सर उसका वाई को, क्या यूज है? इसका जेड का। यस सर. नहीं तो यूज तो अभी देखो ना, ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताने में यूज करना है इसको। क्या ओके. आंसर होगा बोलो? व्हाट विल बी द आंसर? बोलो। मिला आंसर इसका? बोलो जल्दी से, क्या आंसर होगा क्विकली? देखो साउंड वेव्स होंगी तो कौन से कैसे ऑसिलेट करेंगे? ये along the direction of motion, इधर जा रही वेव्स, पार्टिकल विल ऑसिलेट along the x axis, तो may move on the x axis। ये आंसर
और ट्रांसवर्स वेव होंगी तो ऊपर नीचे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे ऐसे, जैसे रोप है, रोप में जर्क दिया ऐसा, तो ये रोप के पार्टिकल ऊपर जाते फिर नीचे आते फिर ऊपर जाते फिर नीचे आते, तो मे मूव अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, क्या आंसर होगा? सी एंड डी। क्लियर? ऐसे दो ऑप्शंस में ये ओके ऐसा हाँ, ये तुम्हारी फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव, फॉर ये जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और फॉर ट्रांसवर्स में। नीट में कैसे आते पता? उसको ऐसे ऑप्शन दे देंगे, ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट पहले में, फर्स्ट में, टू में बी एंड सी, थर्ड में सी एंड डी, लाइक दिस, यू हैव टू मार्क लाइक दिस। ठीक है, those who want to go for NEET. Clear? And JEE के लिए Yes. तो C and उसमें D, दो ऑप्शन ये रहा दो भी रहते, तीन भी रहते, चारों भी रहते, and nowadays they give the part marks. Suppose if you do only C, so you may get half marks. If you do C and D, so you may get full 4 marks. If you do part है ना, suppose तुमने C करेक्ट कर दिया तो 1 marks मिल जाएगा, और if you do C and A, तो none of the marks wrong हो जाएगा. If you do only one part and no negative, no wrong, so you may get 1 mark. If you do all the part correctly, you will get 4 marks like this. All right. So JEE Yes, sir. yes advanced I'm talking about. Mains में तो एक single option, they will give you single option correct. NEET also single option correct. Okay. What about this question? ये वाला. Sir, distance equals speed into time से करेंगे. कितना आएगा? आ रहा आंसर? सर एक मिनट.
बोलो। Getting? Yes, Adit. So sorry भाई. Krishan. Shubhan. Sir, solving. Siddhant. Earthquake generates sound waves inside the earth. Unlike gas, the earth can experience both transverse. Gases में केवल longitudinal होती है. Solids में, earth is solid, there can be both the waves, transverse and longitudinal. Typically, the speed of transverse wave is 4 and that of the longitudinal wave is 8. And the seismograph records P and S wave from the earthquake. कहीं पर सपोज किसी डिस्टेंस पर seismograph लगा हुआ है and it is recording both the waves. The P waves arrives 4 minutes before the first S wave reaches there. क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है P waves की. Longitudinal waves are faster. They will reach same. P का टाइम x है, तो S wave time will be x plus 4 and assuming the waves travel in straight line. P का हाँ P arrives 4 minutes before. हाँ ठीक है. P का अगर T लिया तो उसका जो है T plus 4 लेना पड़ेगा. 30 plus ठीक है. 240 seconds. हाँ क्या आ रहा है? T आ रहा है 240 तो seconds आ रहा सेकंड में. है. अच्छा फिर 8 किलोमीटर पर सेकंड को भी कन्वर्ट करना.
क्या रहा बोलो? दोनों डिस्टेंस सेम कवर कर रहे हैं. Suppose A पर earthquake start हो रहा है. A is the epicenter. B is the place where seismograph is fitted. यहाँ से एक P waves आएंगी, दूसरी S waves आएंगी. P longitudinal wave से जल्दी पहुंच रही है, S थोड़ा ऊपर नीचे करके आ रही, लेट पहुंच रही है ना. But distance covered is same. Time is, एक में T लेंगे, दूसरे में T+4 ले लेंगे. Yes. तो टाइम मिल गया, डिस्टेंस मिल जाएगा फिर. Speed equals distance by time, and X1 is equal to distance. V1 T plus is equal to V2 T+4. इसको सेकंड में ही कर लो. 4 मिनट 240. को तो 30 सेकंड कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 8 किलोमीटर. आई मीन ये T हो गया और ये सर कितना फाइनल है? आंसर 4. 960 किलोमीटर है. 960 आ रहा है. तो T कितना आया तुम्हारा? 240 सेकंड. सर किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर. Yes, sir. 240 सेकंड्स आया. तो x1 निकाल लो. फिर x1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी. v1 कितना है? 8 इंटू 240 कितना आ रहा है ये बोलो. सर वो 8000 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड. Yes, sir. Kilometer per second. सेकंड कैंसिल हो जाएगा ना. यहाँ देखो किलोमीटर है ये ऐसे. दिस इज किलोमीटर पर सेकंड एंड ये हाँ, yes, sir, 240 yes, sir. सेकंड हैज गॉन. Okay. किलोमीटर विल रिमेन. कितना आएगा? किलोमीटर 1920 किलोमीटर. क्लियर. यहाँ पे हमने कन्वर्ट नहीं किया बिकॉज आंसर गिवन वाज इन किलोमीटर. ये एम्स में आया था क्वेश्चन. एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है ये 11th का. इट वाज आस्क्ड इन एम्स. तो v1 into t. v1 is 8 किलोमीटर पर सेकेंड into 240 seconds. S has gone. किलोमीटर में ऑप्शन दिए थे तो we don't have to convert them. 1920 है कि हाँ 1920 किलोमीटर is the right answer. ठीक है. Clear? Distance covered are same. Time taken by one wave is t. So therefore time taken by the slow wave will be t+4. तो हमने मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया बिकॉज किलोमीटर पर सेकंड है. सेकंड विल गेट कैंसिल. आंसर विल कम इन किलोमीटर. नहीं, इनफैक्ट किलोमीटर विल गेट कैंसिल. तो आंसर विल कम इन सेकंड्स, है ना. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है ना, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे अभी 9th इसमें नहीं आएगा 9th के लिए. बट दिस इज गुड क्वेश्चन. ठीक है. We'll have the revision in next classes. Tomorrow, what is the time? सर 230. Okay. ठीक है. Yes. फिर we'll end it now. इसको ऐसे करना सकते. Okay then. Thank you. चलो. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Okay. Bye. Okay.